اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جنات ہوتے ہیں؟ کہتے تھوڑا سا آگے گیا مجھے ایسے لگے نا جیسے نا میری سائیکل چل نہیں رہی. یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں یہ جن اللہ کی مخلوق ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہاں بھائی واپس آ گیا آپ کا بھائی یوٹیوب پہ. اب سین کیا ہے, واپس کیا لینے آیا؟ تو یار دیکھو تھوڑی سی جو ہے نا وہ جب ہم لوگوں کو دبئی والوں نے باہر اٹھا کے پھینکا نا, تو اس کے بعد واپس آ کے آپ کا بھائی پہلے بھی گرافک ڈیزائنر تھا, تو آپ کے بھائی نے جو ہے نا تھوڑی سی ویڈیو ایڈیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ میں جو ہے نا تھوڑی سی اپنی پکڑ مضبوط کی. تو تھوڑا سا ٹائم ہم لوگوں نے دیا اس کو, لیکن وی آر بیک آن یوٹیوب ناؤ. تو ہم لوگ اب کیا کریں گے, ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں جی پوڈ کاسٹ. ہاں پوڈ کاسٹ جو کہ اسی ہی ولاگ کے اندر ہی پوڈ کاسٹ ہوگا. یہ صرف ایک انٹرو تھا, اور انٹرو کے ساتھ ساتھ جی ہم لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ شروع کریں گے جی اسی کے اندر پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کس کے ساتھ ہوگی جی؟ پوڈ کاسٹ شروع ہوگی جی ہماری اماں کے ساتھ اور ان کی خوفناک کہانیوں کے ساتھ. تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے اماں کے ساتھ پوڈ کاسٹ. اچھا جی, تو السلام علیکم اور ویلکم بیک ہو گئے جی ہمارے پوڈ کاسٹ میں. ٹھیک ہے, آج کی جو ہماری مہمان ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, کیونکہ وہ ہماری اماں ہے. یہ اماں وہ ہیں جو کہ میرے خیال سے جو ہمارے پرانے ویورز ہوں گے, جو ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے, تو شروع کے جو ایک دو ولاگز ہیں نا اس کے بیچ میں میری اماں جو ہے نا وہ خود آئی ہیں. مطلب ایسے نہیں آئیں, بغیر مجھے گالیاں دیتے ہوئے جو ہے نا وہ آئی ہیں. اوئے بغیرتا اور سارے میرے کپڑے تھلے سوٹ چڑے نہیں. شاباش آفرین ہے میرا اوپر تیرے لیے. تو آج میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں اپنی اماں سے, جو کہ اس ٹائم بڑی سیریس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے شاید, اور ان کے دل میں جو ہے نا وہ اسٹیل گالیاں شالیاں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. لیکن میں نے آج اماں کو منع کر دی ہے کہ آج گالا نہیں کٹنی ہے. ٹھیک ہے, آج بڑی سیریس گل کریں گے ایسی. ہاں جی ماں جی, کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اونچا بولنا, ٹھیک ہے؟ ہاں جی آپ ٹھیک ہو؟ ہاں جی میں بھی ٹھیک ٹھاک. کھانا شانا کھایا؟ تسی بنا کے دیتا سی ماشاءاللہ, میں کھا لیا سی. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو میں نے جو ہے نا اپنی عوام کو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں نے بتایا ہے کہ میری اماں کو جو ہے نا وہ جن بھوت اور اس طرح کی جو کہانیاں جو ہے نا وہ سنانے میں جو ہے نا وہ بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ. ٹھیک ہے, ادھر میرے ویکھنا ادھر نہیں ویکھنا تسی. ٹھیک ہے, تسی ان کیمرے نو ویکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک, ادھر کچھ ریلا بیٹھی کی پتہ کوئی چڑیل بیٹھی ہوئی ہے جنا کو وہ ہے, بعد چ کمرے چ بھی جانا ہوتا بندے نے. ٹھیک ہے, اچھا کوئی آپ نا ایسا کوئی واقعہ بتاؤ جو سچا ہو. ٹھیک ہے, جس میں جن بھوت بھی ہو لیکن کہانی سچی ہو. جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ اے آئی دا دور ہے, بندہ اینڈ فٹافٹ پھڑ کرتا. ٹھیک ہے, سچی کہانی بتانی ہے, اور جو مطلب سسپینس والی ہو, جسے دفعہ بندہ سن کے نا مطلب مزہ بھی آئے اور سسپینس والی بھی ہو. ٹھیک ہے, چلیں. کہانیاں ہوتی ہیں نا, ہاں, ایک کہانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ بیتی. اچھا آپ بھی. ایک کہانی ہوتی ہے جگ بیتی. جاگ بیتی, آپ بیتی اور جاگ بیتی میں کیا فرق ہے؟ آپ بیتی جو ہوتی ہیں نا وہ جو ایک انسان ہے نا اس کے اپنے اوپر گزرتی ہے. اچھا, وہ اس دور سے گزرتا ہے, وہ کہانیوں سے, جنوں سے, بھوتوں سے, اور جس طرح کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ اس کے اوپر گزرتی ہے. اس کو کہتے ہیں جی آپ بیتی. اور جگ بیتی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی جو لوگ آپ کو سناتے ہیں, جو بزرگ ہوتے ہیں, جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں, جو مدتیں گزرتی ہیں, ان سے ہمیں جو ہے نا یہ کہانیاں وراثت میں ملتی ہیں, چال سو چال آتی ہیں, ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہانی ایک قسم کی آپ بیتی ہے, کیونکہ یہ کہانی میرے والد صاحب نے سنائی ہے, اور ہم بچپن سے ہی ان کو سنتے آتے تھے, اور ان کا بڑا ایک سٹائل ہوتا تھا کہانی سنانے کا, اور یہ ان پہ گزری ہے. اب جو ان پہ گزرتی تھی وہ ہمیں سناتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ آپ بیتی ہے. تو یہ بھی کہانی جو ہے ان کی اپنی ہے, تو اب وہ تو ہے نہیں ہے, تو میں ان کی کہانی میں سناؤں گی. وہ ماشاءاللہ ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو ان کی جوانی کی یہ کہانی ہے. یہ ان کی جوانی کی کہانی, ان کی جوانی کی کہانی ہے. وہ اس دور میں قطر شہر میں نوکری کے لیے گئے تھے. اچھا, اور یہ انہوں نے ہمیں سنائی کہ وہاں پہ بہت سے لوگ جو کام کے لیے جاتے تھے نا, تو وہاں پہ ڈیرے ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ گجروں کے ڈیرے ہوتے ہیں. گجروں کے ڈیرے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو مجھے پیسے کھائے ہوتی ہیں نا, وہاں پہ لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, لوگوں کے ڈیرے ہوتے تھے, اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی, لیکن ڈیروں پہ بھی بڑا ایک اچھا ماحول ہوتا تھا.
सब लोग छुट्टी के बाद अच्छा वैसे पहले दफा सुना कि डेरों पे भी अच्छा माहौल होता है। अच्छा माहौल इस तरह के जो बेचारे बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते थे ना, वो सब लोग, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई बांग्लादेशी है, सब Mix। लोग मिक्स वहाँ पे डेरों पे रहते थे। और वहाँ पे भी बड़ा एक अच्छा माहौल होता था, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे और एक दूसरे की बड़ी केयर करते थे। और डेरे ऐसे होते थे कि जो बहुत दूर, शहरों से दूर होते थे, वहाँ पे लोग जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ बसों में आते थे। अच्छा मतलब ये जो बाहर कंपनियां हैं, वहाँ पे लोग उनको बसों में लेके दूसरी जगह पे जहाँ जहाँ काम के लिए उन्होंने अपने वर्कर को छोड़ना है, जितना लेके जाना उन्होंने जगह जगह उनको छोड़ना, जी ये जगह आपकी, इधर आपने काम करना है, इधर आपने काम करना है, बसें होती थी। तो लेकिन ये बसें सिर्फ यहाँ ये सहूलत लगा लें कि उस टाइम तक होती थी जब उन्होंने ये काम करना है, उसके बाद वो फ्री है, भाई जहाँ जाना है खुद ही जाना। तो उस दौर में उनके पास वहाँ पे साइकिलें होती थी। कतर में भी कहीं जाने के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास साइकिलें होती थी। और हर हफ्ते पे एक बंदे की ड्यूटी होती थी कि उसने शहर की तरफ जाना है और पूरे हफ्ते का राशन पानी जो है ना वो लेके आना है अपने ग्रुप के लिए। सब लोगों के ग्रुप होते थे अपने अपने। तो उन्होंने बताया जी जिस तरफ से हमने जाना होता था तो एक बड़ा सुनसान वीरान सा एक बहुत बड़ा मैदान होता था, जैसे सहरा है और रेगिस्तान जैसा, रेगिस्तान जिस तरह दुबई के वो सहरा वगैरह होते हैं। अच्छा ऐसे तो साइकिल पे जाना है, आधा साइकिल पे, आधा पैदल, आधा साइकिल पे, आधा पैदल के, कहीं साइकिल चलती है, कहीं साइकिल नहीं चलती। तो एक बंदे की पहले ड्यूटी लगी हुई थी कि तुमने जाना तो ये शहर से गोश्त ले आना और ये सब्जी वगैरह सारी जो होती है ना हफ्ते का, ये तुमने राशन लेके आना। अच्छा एक दो दफा वो बंदा कोई था, उसने आना करना वापस, उसने कहना यार मैं उस इलाके से गुजर के आया हूँ लेकिन मुझे ना अजीब अजीब सी ना आवाजें आती, जिन्नात की और शोर शायद कोई चीज थी उधर, वीरान जगह होती थी। अच्छा तो बड़ा बड़ा मतलब कि मीलों का सफर होता था। अब हर चीज उस दौर में मिलती तो नहीं थी जैसे आज हम ऑर्डर करते हैं तो हर चीज हमारे फूड पास पांडा से मिल जाती है। ठीक है, उस वक्त बाहर का दौर भी ऐसे ही था। तो जाहिर है वो गरीब लोग सफर करके जाके अपने लिए राशन पानी लेके आते थे। अच्छा उस बंदे ने जी सबको यही डराया धमकाया, जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं जब भी जाता हूँ मुझे बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, दोपहर का टाइम होता है, इतनी गर्मी होती है, तो मुझे तो डर लगता है कि उस जगह पे कुछ है। अब सब लोग उसका मजाक उड़ाए, उसमें हमारे अब्बा जी भी शामिल थे। अच्छा वो भी मजाक उड़ाया, वो भी के यार चंगा बंदा तुम ये इस तरह जाते हो, तुम तो क्या है उधर कुछ भी नहीं है, धूप ही होती है और क्या, कोई चाहे तुम्हें तो वापस ही ना आने दें। वो कहे नहीं यार इस दफा तो मैं नहीं जाऊंगा, इस दफा आप ऐसा करें मुश्ताक साहब को भेज दें। अच्छा मुश्ताक साहब को, अब नाना मुझे भेज। हाँ मुश्ताक साहब भट्ट साहब जाएंगे जी। अच्छा अब भट्ट साहब कहें जी लो जी मैं डरता हूँ किसी से, मैं चला जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। भट्ट साहब तैयार हो गए, कहने लगे जी अभी तो ये गुजारा करें तो अगले हफ्ते मैं जाऊंगा, मैं देखता हूँ जी क्या है उधर। हफ्ते में एक दफा जाना होता था? हफ्ते में एक दफा पूरे हफ्ते का राशन पानी लेके। अच्छा कतर में? कतर। ठीक है, चलें जी अगले हफ्ता आ गया, भट्ट साहब को सारे तैयार किया, भट्ट साहब इस दफा आपने जाना है? भट्ट साहब नहीं जी कोई परवाह ही नहीं है, मैं जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं। भट्ट साहब ने थैले शैले लिए, साइकिल के आगे लटकाए, बूट शूट पहने और कहने लगे जी मैं चल पड़ा। और जिस वक्त गया जरा मतलब टाइम ऐसा नहीं था कि दोपहर से पहले ही निकले, काफी टाइम लगता था, घंटा डेढ़ लगता था। वो मतलब 12-1 बजे का टाइम, 12-1 बजे का टाइम होगा, दोपहर का टाइम हुआ तो दोपहर भी सुबह ही आ जाती है। वो कहने लगे जी मैंने वो जो मैदान है, वो जो सहरा था एक किस्म का, वो पार किया, शहर की तरफ गए, रोड आई, दुकानें आई, वहाँ से सब्जियां ली, टमाटर प्याज आलू ये सारा कुछ, गोश्त लिया, गोश्त काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ से लिया, पैक शैक करवाया। कहने लगे जी मैं हर चीज़ मैंने लेके तो थैलों में लटकाई, कुछ आगे लगाई, गोश्त कहते हैं मैंने पीछे अपने वो जो स्टैंड होता है उस पे लगा के उसको बांध के, तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, चल पड़ा साइकिल पे ही वापस आना था। कहते हैं कि अब ना धूप ज़्यादा हो, सख्त गर्मी शुरू हुई, एक गर्मी का असर, सर पे धूप, सूरज सामने था। कहते हैं वापस आना शुरू किया तो मैं
जिस रास्ते से आया था मैं उससे थोड़ा सा हट गया, शायद गर्मी की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा था। कहते मैं थोड़ा सा ना मुड़ गया। अब मैदान था, सफर काफी लंबा था। कहते मैं थोड़ा सा मुड़ गया, मुड़ के तो मैं जिस तरफ वो मेरा दोस्त बताता मैं उस तरफ हो गया, पता ही नहीं चला। कहते थोड़ा सा आगे गया, मुझे ऐसे लगे ना जैसे ना मेरी साइकिल चल नहीं रही, मैं साइकिल को आगे करूं, साइकिल मेरी पीछे जाए। फिर मैं बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा यार साइकिल चल तो रही है लेकिन जमीन वही है, मैं खड़ा हूँ साइकिल चलाए जा रहा हूँ, साइकिल चलाए जा रहा हूँ, साइकिल उधर ही है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा साइकिल रुकी हुई है लेकिन वो चला रहे हैं। साइकिल वो कहते मैं चला रहा हूँ, साइकिल के पहिए चल रहे हैं लेकिन साइकिल रुकी हुई है। टाइम कहते हैं मैं टाइम, उस वक्त टाइम होगा कोई तकरीबन 2-2:30 का, और उस वक्त सर पे सूरज था। अच्छा अच्छा। गर्मी इंतहा की, सर में वो सूरज पड़ रहा था कि मैं को यार मुश्ताक के अंदर लगता है कि ये सूरज आज तुम्हारा ना दिमाग खा लेगा। इस कदर गर्मी, कतर की गर्मी और सहरा की गर्मी, और फिर कहते हैं कि रोजी रोटी के लिए और जो इंसान जाता है परदेश, वहाँ पे ये सहूलतें कहाँ देखनी पड़ती हैं। वहाँ तो जो किसी ने कहा जी जी अच्छा ठीक है, कहते हैं साइकिल चलाए जाऊँ चलाए जाऊँ चलाए जाऊँ, साइकिल जाम होगी। कहते हैं मैंने कहा यार उतर के मैं देखूँ तो सही मसला है, उतर के देखा साइकिल का सारा कुछ ठीक। कहते फिर साइकिल पे बैठा, फिर मुझे लगे कि मेरी साइकिल ना को पीछे खींच रहे। अच्छा। कहते एकदम ना मुझे मेरा वो दोस्त याद आ, मैंने कहा यार मुश्ताक अहमद उसने झूठ नहीं कहा था, उसने बात सच्ची की है, कुछ है यहाँ पे। कहता उस वक्त मुझे अपनी अम्मा भी याद आई, अपनी नानी भी याद आई, बच्चे भी याद आना शुरू हो गए कि वो तो बच के चला गया था, लगता है आज मैं नहीं बचूंगा, मेरे पास तो गोश्त है इतना पड़ा हुआ पीछे। कहते मैं खड़ा हो गया, मुंह मैंने सामने ही रखा और मैंने ऊंची आवाज में सलाम ली, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई किसी भी किस्म की महलूक यहाँ पे है तो मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, तो आपको जो कुछ भी मुझसे चाहिए आप ले जाएं। कहने लगे थोड़ी देर खामोशी रही, तुसी ले जाओ मैनू जान दो, कोई आवाज ना आई। वो यही कहे यार मेरे पास जो है ले जाओ, मुझे जाने दो। कहते कोई आवाज ना आई, खामोशी, ऐसे अजीब सी सनसनाहट सी हो, जिस्म मेरा कांपने लग गया, जिस्म का रुआ जो है वो खड़ा हो गया, क्या पसीने और तेज आने शुरू हो गए, जो दिल में था पढ़ना शुरू कर दिया। कहते आस्ता आस्ता मैंने महसूस किया कि पीछे जो शापर मेरे पड़े हुए हैं गोश्त के, उसमें से जो है ना वो बोटियां निकलनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई चीज कोई महलूक कुछ भी शो नहीं हो रही, लेकिन मेरे शापरों में से ना गोश्त जो है ना वो निकलना शुरू हो गया, बोटियां निकलनी शुरू हो गई हैं। मैं देखूं कहते जिसमें मेरा कांपना शुरू हो गया, टांगे मेरी कांप रही हैं, गोश्त निकलता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। कहते हैं जी पूरा शापर जो है ना वो गोश्त का खाली हो गया। बड़ी हिम्मत है, शायद वो जो पढ़ रहा था उसकी हिम्मत थी कि मुझे खड़ा होने में, वो जो मैं दुआ कर रहा था उसने मुझे अल्लाह के कलाम में हिम्मत दी हुई थी, मैं खड़ा था, भागा नहीं मैं। कहते हैं जब गोश्त का थैला खाली हो गया, मैंने कहा यार बस अब ना ये मेरी जान छोड़ देंगे, जो भी है कोई जीन है भूत है जो भी, अब मेरी ये जान छोड़ देंगे। कहते नहीं जी जान कहाँ छूटनी थी, गोश्त के अलावा उन्हें शायद सब्जी भी चाहिए थी। कहते मैंने मुड़ के जब हैंडल की तरफ देखा, सब्जी भी शापर जो है वो खुलने शुरू हो गए, टमाटर उड़ रहे हैं, मिर्चें उड़ रही हैं, प्याज उड़ रहे हैं। कहते ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और ये सर्कस में खेलते थे। कोई शायद एक नहीं को 2-4 वो महलूक होगी, कोई जिन था ये जो भी। कहते वो जी मैं देखूं कि टमाटर इधर जा रहे हैं, कोई प्याज ये तो जैसे वो फिल्म वाला सीन नहीं हो गया, जैसे वो फिल्म में वो ऐसे सब्जियां ऐसे उछालते हैं और डराते हैं इंसानों को, वो ऐसे लगे जैसे फिल्मों वाला ही सीन है। अच्छा सच्ची कहानी है? सच्ची, बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये हम लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान में जिन होता है और तवीज़ लोग करवा रहे हैं और ये काले जादू चल रहे हैं,
ये हर जगह पे होते हैं, ये जिन अल्लाह की महलूक है, अच्छा ये फिर हर जगह पे ही होते हैं। शरारतें भी करते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं। और अगर यार एक वो भी था ना, वो अगर आपको याद हो, वो कैपिटल रोड वाला घर हाँ था। जी हाँ, वो उस घर में तो हमारे साथ ही वो रहते थे। अल्लाह ताला उनको लंबी और जिंदगी दे। लेकिन वहाँ पे जो हुआ था वो फिर हम आपको दोबारा से वो भी कहानियाँ जो है वो हम सुनाएंगे, शेयर करेंगे। लेकिन ये जो कहानी है, अच्छा, ये घर कैसे पहुंचे? घर कैसे पहुंचना था, कहते हैं वो पहले तो उड़ते रहे टमाटर, फिर मिर्चे और प्याज उड़ते रहे, आलू उड़ते रहे, मैं देखता रहा खड़ा होके। कहते मेरे दिल में आया कि यार ये मुझे ना नुकसान नहीं पहुंचाए, इनको जो चाहिए था ये ले गए। इनको जो चाहिए ये इनको मिल गया है। दूसरा मुझे लगा कि ये जो है ना कोई जिन है, ये बच्चों वाले हैं, मतलब जो बचपन के जो जिन होते हैं, जो छोटे होते हैं ना उम्र में, शरारतें करने वाले। जिनों में उम्र भी होती है? उम्र ही होती है ना, जाहिर है ये पैदा होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी उम्र होती है। जिन बच्चे मरते हैं? जिन मरते भी हैं। अच्छा, जिनों का जनाजा होता है? जनाजा भी होता है, सारा कुछ ही होता है। ये मरते हैं लेकिन इनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती है। नहीं, जैसे एक इंसान मरता है, हम्म, उसकी कब्र खोदी जाती है, उसको दफनाया जाता है, उसका जनाजा होता है। हम्म। ऐसा जिन्नात का भी होता है? जिन्नात का भी होता है। जिन अल्लाह ताला की महलूक है, ये मरते भी हैं, इनके जनाजे भी होते हैं, लोग इकट्ठे भी होते हैं। आपने अक्सर ये फिल्मों में, ड्रामों में, नावल में देखा है कि जिन जो है उनकी शादियाँ भी होती हैं। शादियों पे भी जैसे हम लोगों की शादी होती है, फंक्शन होते हैं, लोग ढोल बाजे बजाते हैं, दुल्हनें तैयार होती हैं, इसी तरह इनके भी फंक्शन होते हैं। हाँ, एक दफा तो वो मुझे याद है, अबू ने हमें ना, वो एक और जगह थी, मैं बताऊंगा फिर कभी। वहाँ से ना अबू ने ना हमें मना किया है कि ना रात के टाइम इधर से नहीं आए। नहीं, तो हमने कहा कि नहीं चलो जी कोई बात नहीं, शॉर्टकट है, इधर से जाते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि निज़ाम जो था ना, हम लोग रात का टाइम वगैरह मगरिब के बाद और इशा से पहले का टाइम। अब ना वहाँ से आ रहे हैं, अब मेरे साथ हामिद था, ठीक है, और बाकी और भी वहाँ थी मेरे साथ, उसामा भी था। तो अब मैं चलता जा रहा हूँ, मतलब हाइकिंग कर के ना थके हुए थे, पाँव में छाले पड़े हुए हैं और पीने के लिए पानी भी नहीं था। तो ना मैंने अब इन दोनों को मैंने बोला है, मैंने कहा यार सामने से ना, सामने वाले पहाड़ से जो है ना वो आवाज़ आ रही है ढोल की। कहते नहीं नहीं तेरा वहम है, तेरा वहम है। मैं बोलूँ नहीं यार आवाज़ आ रही है। कहते नहीं तेरा वहम है। मैं किसी तरीके ना अपने आप को मैंने उधर से अपना जेन मैंने हटाया, तो मैंने चलना शुरू कर दिया। अब मैं जैसे जैसे जो है वो घर के करीब पहुंचूं, मुझे आवाज़ आए ढोल की, डम डम डम, कायदा जिस तरह शादी होती है उस तरह की। फिर मैं नीचे आके इन दोनों से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लोगों को आवाज़ आ रही थी? कहते हाँ आ रही थी। मैंने कहा तो उर्दू क्यों नहीं बोले? नहीं हम लोग इसी बोले ताकि तुम डर जाओगे, ज़्यादा डर जाओगे तो फिर वहीं पे हालात खराब हो जाए। असल में जो टाइम था ना, वो अक्सर आपने सुना होगा कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से लिए अल्लाह का हुक्म है कि मगरिब के टाइम आप लोग जिधर उधर रुक जाओ, बल्कि घरों से बाहर ना निकले। मगरिब का टाइम ऐसा होता है कि ये महलूक बाहर निकलती है। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जिन्हों का उस वक्त क्यों निकलना है या उस वक्त क्या होता है। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ये अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन मगरिब के टाइम कहते हैं कि जो बाहर है उनको भी घर में बुला लें, वो बाहर ना रहें। तो उस टाइम जो है ना ये अभी एक बंदे का नाम नहीं लेते, ठीक है, आपको याद होगा खाला के घर में एक वाकया पेश हुआ। हाँ, वो वाकया हम एक कहानी की सूरत में ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन ये जो हम कहानी सुना रही हैं, इस बंदे का जो हाल हुआ ना, भट्ट साहब का, अब नाम भट्ट साहब है, बड़ी शेहियाँ मार के वो निकले थे। बड़ा उन्होंने कहा जी अपने दोस्तों को, जी हम तो डरते ही नहीं है किसी से, हम भट्ट हैं। अब भट्ट भी डरते हैं, ज़ाहिर है, इंसान थे। वो कहते हैं जी जब टमाटर शमाटर खत्म हो गए, मिर्चें प्याज खत्म हो गए, तो मैं स्टैंड पकड़ा साइकिल का, कांपता जा रहा हूँ, हैंडल मैंने पकड़ा हुआ है। कहते हैं और तो मुझे कुछ समझ ना आई कि मैं अब क्या करूं। तो कहते हैं मैंने ऊंची आवाज में कहा जी अगर आपने ये दावत खा ली है, गोश्त वगैरह खा लिया है, तो आप अगर इजाजत दे तो मैं चला जाऊं। कहते हैं आवाज कोई ना आई। कहते हैं मैंने साइकिल को थोड़ा सा आगे किया, लेकिन साइकिल फिर जाम की जाम। कहते हैं मैंने कहा नहीं यार, मुझे लगता है आज ना इनको कुछ और भी चाहिए। कहते फिर मैंने आवाज़ दी कि अगर आपने कुछ और नहीं चाहिए आपको, तो आप मुझे इजाज़त दे दें।
मैं अगले हफ्ते फिर यहाँ से गुजरूंगा, मैं आपका हिस्सा गोश्त लेके आऊँगा, तो आप बेशक यहाँ से और गोश्त खा लें, लेकिन अभी मुझे इजाज़त दें, मुझे जाने दें। कहते हैं कि मुझे ना ऐसे जैसे ना हल्की सी ना सरसराहट सी महसूस हुई है अपने जिस्म में। मुझे ऐसे लगा ना जैसे मुझे किसी ने हल्का सा धक्का दिए कि जाओ, धक्का दिया है कि इजाज़त दी है कि जाओ। गोश्त भी हमने खा लिया, तुम्हारी सब्जियां भी खा ली हैं, और जितना मेरा ख्याल है उस दिन जो है ना वो सब्जी गोश्त बना होगा, सब्जी जनाब गोश्त के। बना होगा, आलू गोश्त उन्होंने पकाए होंगे, खूब डट के खाए होंगे। तो वो जनाब जाहिर है वो शरारती बच्चों का ही था शायद, वो सिलसिला बड़ों का तो जिनों का ये काम नहीं होगा। और हो सकता है कि वो जिनों के जो बड़े थे उस दिन, जिनों के जो बच्चे हैं उनको डांट भी पड़ी है, हो सकता है उस दिन कोई उनका ईद का त्योहार हो, उनको डांट पड़ी हो कि तुमने भट्ट साहब को हाँ तंग किया है। तो भट्ट साहब कहते हैं जी मैंने साइकिल को थोड़ा सा किया, वो साइकिल लगा के आज़ाद हो गई है, हल्की हो गई है। कहते हैं मैंने साइकिल को थोड़ा सा तेज किया, वो साइकिल चल पड़ी। कहते हैं फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, ऊंची आवाज में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, साइकिल के ऊपर बैठा, और साइकिल जिस तरफ भी गई मैं उसको चलाता ही गया। कहते हैं साइकिल बड़ी तेज मैंने अपनी ऐसे जैसे मैं जहाज पे बैठा हूँ और मैं कैप्टन हूँ। कहते हैं जहाज उसको साइकिल को मैंने तेज किया जी, मैं निकला वहाँ से, और जो सफ़र 1 घंटे का था वो मैंने आधे घंटे में तय किया। और जब मैंने देखा कि मेरा डेरा सामने आ गया है, लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, कहते हैं मेरी हिम्मत जवाब दे गई। किसी एक को मैंने देखा, मैं वहीं पे गिरा, साइकिल वहाँ गई, मैं वहाँ गया, लोग भागते हुए आ गए, भट्ट साहब ने पढ़ो, भट्ट साहब ने पढ़ो, भट्ट साहब को उठाया अंदर ले गए। अब भट्ट साहब कहते हैं जी मैं थोड़ी देर बाद होश में आया, तो उन्होंने मुझे पूछा भट्ट साहब क्या हुआ है। तो मैंने कहा यार वो मेरा वो जो दोस्त था, कहते मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा यार हाजी साहब को बुलाएं। हाजी साहब आया, हाजी साहब आके मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा भट्ट साहब क्या हुआ है। कहने लगे यार तुम मुझे ये बताओ कि इस तरह का वाकया तुम्हारे साथ। उसने कहा जी मेरे साथ ये वाकया तो हुआ ही नहीं है, मैं तो थोड़ा सा उधर हुआ था तो मुझे आवाज़ें आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप तो उनके एरिया में घुस गए थे, और आप उनके एरिया में गए हो तो उन्होंने तो फिर आपके साथ ये सलूक करना ही करना था। कहते हैं भट्ट साहब फिर के मैं तो 2-3 दिन जो है ना मुझे बुखार रहा, अच्छा खासा बुखार रहा, और जो मेरे दोस्त थे वो आए मेरे पास तसल्ली दें, और तसल्ली देते देते वो हल्के फुल्के मेरे ऊपर तंज भी करें कि भट्ट साहब जाओ तुसी बटा दा ना ही बदनाम कर छड़िया, जिन्हां कोलों डर गए हो, जिन्हां नाल वड्डे ते बट हुंदे ने, ते तुसी है की कीता। वो कहते हैं कि फिर ड्यूटी जिसकी लगी उसने कहा जी गलती से भी उस तरफ नहीं जाना, और ड्यूटी जिसने देनी है राशन पानी लेके आने की वो अकेला कभी नहीं जाएगा, 2 बंदे जाएं, 2 बंदे जाएंगे, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाएंगे और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आएंगे, और उस एरिया की तरफ नहीं जाना। और दूसरा ये है कि गोश्त पीछे नहीं बांधना, गोश्त को आगे रखना है और बांध के लेके आना है अच्छी तरह से। और अगर कोई इस तरह का वाकया हो जाए आपने कुछ नहीं करना, आपने आराम सुकून से खड़े होना है, जो आपको याद है आपने पढ़ना है, उनको जो चीज़ चाहिए वो लेंगे और चले जाएंगे, मुदाखलत नहीं करनी। और फिर ये भट्ट साहब ने कहानी जब वो छुट्टी पे पाकिस्तान आए उस टाइम और जब हम बच्चे थे हमने कहा जी अबू जी हमें कहानी सुनाए, और ये कहानी अबू जी ने हमें बड़े मिर्च मसाले लगा लगा के सुनाई, लेकिन उन्होंने तब हमें शो ना किया कि वो जो भट्ट साहब थे वो मैं था। उन्होंने कहा जी मेरा दोस्त था उसके साथ ये वाकया बाद में सच्चाई सामने और कुछ अरसे बाद जब वहाँ से हमारे दूसरे ताया और चचा आए तो उन्होंने आके हमारे अब्बा जी से हाल चाल पूछा, तो अब्बा जी ने फिर शो किया जी वो भट्ट साहब मैं था, और मेरे साथ ये वाकया हुआ था कि मैंने डायरेक्ट जीनों के साथ जो है ना वो टाइम गुजारा था, और उन्होंने मेरा जो पूरे हफ्ते का राशन था ना वो मैं खुद अपने गोश्त भी ले गए, सब्जियां भी ले गए, सब कुछ वो ले गए। और ये आप बीती है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, और इस तरह की बहुत सी कहानियां हमारी जिंदगी में इर्द गिर्द होती हैं। बाज़ दफ़ा हम महसूस करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ और है, बाज़ दफ़ा हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर होता है कि इंसान अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं करता, लेकिन हर जगह पे अगर इस तरह का कोई मामला हो तो इंसान को आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, सूरत नास पढ़नी चाहिए, और दूसरा ये है कि एहतियात करनी चाहिए। किसी भी वीरान जगह पे जाने से पहले
آپ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور حدیثیں بھی ہیں ہماری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا رہی ہیں دیکھیں محسوس کریں کہ یہ عجیب سی جگہ ہے یا ویران ہے، یہاں پہ ویران ہے، تو آپ وہاں پہ سلام کریں، اجازت لیں، پھر بیٹھیں، کھائیں پئیں، لیکن کوشش کریں کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں جو تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ اچھا جی، تو یہ تھی جی ایک آپ بھی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ مشتاق بٹ صاحب کے ساتھ گزری، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھی ہیں یہ مشتاق بٹ صاحب کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، درمیان والی، اور یہ کہانی بالکل سچی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی مزید کہانیاں اور مزید کچھ جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آنے والے کچھ ویڈیوز میں، آنے والے تھوڑے سے جو آئیں گے، ابھی پوڈ کاسٹ آئیں گے میری اماں کے ساتھ، تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اگر یہ آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی۔